watching the News Hour Special Edition. And all roads lead to Ayodhya this weekend. It's not just the VHP but also the Shiv Sena that has begun huge mobilization on the issue of construction of a Ram temple here in Ayodhya. In fact, it was Uddhav Thackeray who set the ball rolling today with an Ashirwad Sammelan seeking the blessings of Seer at Lakshman Kila here in Ayodhya. The big question now is whether the big demand of Mandir Kab Banega is giving way to Mandir Jaldi Banega. That's the slogan that perhaps is gaining ground here in Ayodhya. Take a look at what all has transpired today. Amid a sea of saffron, the biggest push for a Ram Mandir has begun. Shiv Sainiks, VHP, RSS and Seers have combined forces to press for an ordinance to build the temple. During this Dharm Sabha, Ayodhya braces itself for the saffron siege. क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है मंदिर बनेगा? जी मंदिर बहुत जल्दी बनेगा। मंदिर बनेगा, क्या उम्मीद है? मंदिर बनेगा। भाजपा वाले दोगले हैं, ये वो दोगले लोग हैं, केवल राम नाम पर ये सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद राम को भूल जाते हैं। Even as the Shiv Sena and the VHP begin their mass mobilization program here in Ayodhya, these intricately carved stones that are meant for a grand Ram temple perhaps reflect the sentiment here on ground. The fact that nothing really has happened, no concrete move forward, and the fact that this issue has been hanging fire in courts for so many years represents a sentiment here in Ayodhya on this issue and the need for its resolution at the very earliest. Whipping up the frenzy in Ayodhya was the Sena chief. पूरे संतों के सामने वचन देता हूं, मैं राम भक्त मुझे नहीं चाहिए थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हर हिंदू की यही पुकार। जय हिंद। Other saffron hotheads threaten and dare the BJP for a speedy build-up. 5 दिसंबर तक का माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैंने टाइम दिया है कि कानून बना के राम मंदिर की जो है तारीख घोषित कर दीजिए। ऐसा यदि नहीं करते हैं तो 6 दिसंबर को मैं खुद आग लगा करके और अपने को आग के हवाले कर दूंगा। हजारों साल का कलंक मिटाने में 17 मिनट भी नहीं लगे, तो ऑर्डिनेंस लाने में इतने साल क्यों लगते हैं? वो 17 मिनट नहीं 17 सेकंड का काम है। Can the Yogi government ensure peace amid this chorus from Mandir? Bureau Report, Times Now. You're watching the News Hour Special Edition, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. To debate this story, we have with us our guest joining us live. Ashutosh Mishra, senior journalist, joins us. We also have Dr. Sudhanshu Trivedi, national spokesperson of the BJP, joining us live from Jaipur. We have with us over here in Ayodhya, Janmay Sharan, who's the Adhyaksh of the new Ram Janmabhoomi Nyas Parishad. We have also Anubhav Shukla, president of the Hindu Yuva Vahini. Santosh Dubey of the Shiv Sena is with us, and also with us is senior journalist Manzar Mehdi. Let me begin by asking you, Dr. Sudhanshu Trivedi, is the mantle of the Ram Mandir being pulled away from the feet of the BJP? Because clearly other political parties, other organizations seem to be getting increasingly far more vocal on this issue than the BJP itself, Dr. Trivedi. As far as BJP is concerned, Bhagwan Sri Ram's grand temple was never an issue of any political concern. It was representing the social, cultural and national consciousness of India. It is our pledge that there should be a Bhavya Ram Mandir there. And as a government, it is our duty and we are trying that we should have to remove all the obstacles as far as possible. But I am saying there is no question of credit to state, rather than we are happy to see that there is a paradigm shift in the narrative. You remember, people are talking about 1992 when that entire movement started in the 90s.
इट स्टार्टेड नॉट विद द नैरेटिव कि वहां मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा। नैरेटिव तो ये था, राम तो थे ही नहीं, अगर थे तो ये अयोध्या थी ही नहीं, अगर थी तो ये साबित करिए कि यही हुए थे। यहां से बात शुरू हुई थी। और याद करिए, ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे श्री पी नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा था हम मस्जिद बनवाएंगे, और मुलायम सिंह यादव जी थे यूपी के सीएम, उन्होंने कहा था हम तथाकथित मस्जिद दोबारा बनाएंगे। आज कितना बदल गया माहौल। आज we need to ask that question sir, to the Ashutosh Mishra. Ashutosh Mishra, what Dr. Sudhanshu Trivedi is saying is there's a paradigm shift in the entire discourse. There was on one hand during the UPA regime, several of those were questioning the existence of Ram, and now you have a situation where you're seeing this mass mobilization by different organizations, Ashutosh. So there's a paradigm shift in what the Sena is doing, and BJP says it's actually pleased with that. How do you respond? माधव, पहली बात तो ये है कि त्रिवेदी जी अर्धसत्य बता रहे हैं। 1993 में जो है जब के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बात करी थी कि हम एक बिल लाते हैं कि राम मंदिर बनाया जाए अयोध्या में। उसका विरोध उस समय किसने किया था? भाजपा ने किया था। ये बात वो क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर वो बता देंगे तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, वोट पाने के लिए बोलेंगे कितने झूठ। द प्रॉब्लम हियर इज दैट Congress has always said that Ram Mandir has to be built and they will follow court's order. It is BJP which is undecided what to do. And what we are seeing here today is that the Sena has outsmarted BJP. Now, if as Uddhav Thackeray said that Kumbhakarn ko jagane aaye hain. So tomorrow if the Mandir is built, who gets the credit? The fight is for that. Bilkul. Important point. Let me take that question across back to Dr. Sudhanshu Trivedi. Dr. Sudhanshu Trivedi, today Uddhav Thackeray has come out and said 4.5 साल तक सोने वाली ये सरकार है, कुंभकर्ण की सरकार है, मंदिर बनाएंगे कहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. What do you have to say? Because clearly the Shiv Sena is openly coming out and calling you out. सरकार में रहकर हमने क्या काम किया, उदाहरण के साथ बताता हूं. जो अंतिम निर्णय है सुप्रीम हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का डिसीजन क्या है, उस 2003 की आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन के बेस पर उन्होंने बताया कि नीचे 72 खंभे निकले, मंदिर था. वो किसने करवाई थी खुदाई? हमारी सरकार ने. आज माहौल में इतना बदलाव है, जो मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था कि ये तथाकथित मस्जिद बनाने वाली पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं. मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र आज क्या कह रहे हैं, हम भगवान विष्णु का मंदिर बनाएंगे. और आज इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि अपनी मस्जिद निर्माण की बात को दोहरा दें. हमसे कहते हैं कि आप अध्यादेश कब लाएंगे. मिश्रा जी से मैं पूछता हूं, अगर अध्यादेश कांग्रेस लाई थी, लाके बता दें कि हमारा ये मसौदा था, हम ये अध्यादेश लाए थे. यही तो मैं कह रहा हूं, सारी बात तो वही गोलमोल है. भाजपा इसलिए मैं ये बहुत भाजपा ने विरोध किया था उस वक्त, भाजपा ने उसका विरोध किया था. हमने 4 साल में, आज सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि मंदिर को जन्मदिन दे देनी चाहिए. पिछले वर्ष 300 मुस्लिम कार सेवक गए थे. अभी 3-4 दिन पहले इकबाल अंसारी तक ने कह दिया. ये वातावरण ऐसे ही बन गया है क्या? Says they will bring an ordinance. If an ordinance is brought, the Shiv Sena will support it. There are BJP members of parliament who said that they will bring in a legislation. What about other opposition parties, Ashutosh Mishra? What about their stand? That's why I'm the saying. point is very simple. That's why I'm saying there is a paradigm shift. I want to remind Mr. आज मुझे बड़ी मजेदार बात याद आ रही है. That Justice Chamleshwar said कि ऑर्डिनेंस सरकार कभी भी ला सकती है. तो ये लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये हर चीज में क्यों कांग्रेस को ब्लेम करना चाहते हैं? अरे कांग्रेस ने तो जो के जमाने में जो है शिलान्यास हुआ, कांग्रेस के जमाने में जो है ताले खुले. अब ये काहे का क्रेडिट ले रहे हैं? अब तो जस्टिस चमलेश्वर जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कहा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बाद भी ऑर्डिनेंस ला सकती है. तो ये उसमें जो है प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है कभी पास नहीं होगा, इनके जो कार्यकाल बता है उसमें ये सबको मालूम है. अभी तक एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है. ये सब बहानेबाजी है. ये वही बात जो उद्धव ठाकरे ने कही है, ये कहते रहेंगे मंदिर यहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, और ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं वोट के नाम पे. अपने अब इनके जो है ये दिखा नहीं पा रहे हैं कि ये 4.5 साल में इन्होंने क्या किया है, और इनके अकल में आ गया है कि राम ही इनको बचा सकते हैं. वो जो ग्रोथ और अच्छे दिन और विकास तो हुए नहीं. तो ये चक्कर है और कुछ नहीं है इसमें. ये ओके,
All right, I want to open this up, gentlemen, both Sudhanshu Trivedi as well as Ashutosh Mishra. I request you to stay on with us. I want to take this open to our panel over here that's live with us on ground in Ayodhya, and I want to take that question back to them. Let me take that question to Santosh Dubey. Santosh Dubey ji, सवाल ये है कि यहाँ पर आके जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए हैं और इस मुद्दे को इस तरह से जो आप प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये यूपीए सरकार से तो बेहतर है क्योंकि उस समय पे भगवान राम पे ही सवाल उठाए जा रहे थे। कम से कम राम टेम्पल की जहां तक मांग है, अध्यादेश लाने की बात की जा रहे हैं, ये स्वागत कर रहे हैं आपका। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत कर रहे हैं जी। तो आप क्या कहेंगे, क्या आप उन पे प्रेशर डालना जारी रहेंगे इस तरह के जो सवाल उठाए आज उद्धव ठाकरे जी ने? उनके स्वागत करने से, उनके हंसते रहने से, उनके मुस्कुराते रहने से रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा, और जब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा तब तक शिवसेना उनका पीछा भी नहीं छोड़ेगी। हम उनके पीछे लगे रहेंगे। या तो वे ऑर्डिनेंस लाएं या बता दें कि हमारी ये केवल दुकान है, हम हर चुनाव में ये ठगी का धंधा चलाते रहेंगे। साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब और ये बार बार कहा जाता है ना उनकी ओर से बलिदान देंगे। आप बलिदान क्यों नहीं देते? ओके, बलिदान देते? इस पे जवाब दीजिए, आपका क्या रुख है इस पे? क्योंकि इनका कहना है ये कंटिन्यूअसली इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का पीछा करते रहेंगे जब तक ऑर्डिनेंस लाता है, इस मुद्दे का रेजोल्यूशन नहीं होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बार पूरा हिंदू समाज एकजुट है। संतों ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, हजारों साल की लड़ाई लड़ी है, और कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों से हम 92 में छूटे थे। राम मंदिर तो बनाना ही पड़ेगा, अध्यादेश तो इनको लाना ही पड़ेगा, तरीका चाहे कोई भी हो। जी, जन्में शरण जी, आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार ये कहा जाता है, जो बीजेपी के विरोधी है वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कई बार कह चुकी है कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कि बीजेपी सीरियस नहीं है, सीरियस होती तो 4.5 साल में कुछ न कुछ करती। आपका क्या कहना है? अभी तक का जो भी सीरियल है वो जन जन के दिल दिमाग में है। अटल जी की सरकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए बनी, राम जी के नाम से बनी, एक एक ईंटा सवा रुपया। राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश से नहीं विदेशों से आया, लेकिन अभी तक अटल जी के समय काल में बनाना तो दूर रहा, एक बार भी सदन में चर्चा नहीं की गई, कोई बिल पेश नहीं किया गया। और वही बात मोदी जी के समय में भी अभी तक कोई बिल पेश नहीं किया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोगों की अपेक्षा बीजेपी से है कि आप मंदिर बनवाएं, और जो मंदिर बनाएगा वो हम लोगों के साथ में है, उनके साथ पूरे राष्ट्र है जो मंदिर बनाए। लेकिन ये जो मोबिलाइजेशन हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप मानते हैं इससे बीजेपी पर दबाव पड़ेगा? एक दबाव नहीं, एक आंधी आती है और चली जाती है। आंधी तूफान पर हम लोग बहुत विश्वास नहीं करते हैं। जो आंधी में आए, हो सकता है आंधी में उड़ जाए, लेकिन मैं एक लाइन में उसी को बार बार दोहराता हूँ, आंधी खुददार दरख्तों को पटक जाती है, साख वही बचती है जो लचक जाती है। हम लोग तो यहाँ के बासिंदे हैं जी। हिंदू मुसलमान की जो बात कही जाती है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे मंजर मेहंदी भाई हैं, तमाम मुस्लिम भाई हैं। हम लोगों ने सनातन संत सूफी यात्रा के नाम से पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम सूफी संतों के साथ में, और 10 हमारे साथ रामानंदीय श्री वैष्णव जो संत हैं वो साथ में थे, पूरी काफिला निकाले जी। पूरे देश में गए। पूछना चाहूंगा मंजर मेहंदी जी, अगर ये जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं क्या आप उनसे सहमत हैं कि जहां तक राम का मंदिर जो बनना है उसके लिए तो यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है वो भी इसका सपोर्ट करती है, तो अब तो फिर इशू कहाँ पे आके बात फंसती है? देखिए, इशू अभी तक ये है कि बचपने से लेकर आज तक हम लोग राम की एक आस्था रखते रहे हैं। हिंदू समाज के सबसे बड़ा नाम है राम का, जिसमें त्याग है, जिसके अंदर कुर्बानी है, भावनाएं। लेकिन पिछले 30 सालों से राम के साथ जिस हिसाब से अमर्यादित रुझान रखा गया, सबसे ज्यादा उनके कैरेक्टर को असैसिनेशन किया गया, उनको डैमेज किया गया, सिर्फ एक राम मंदिर के नाम पर। न उनकी कोई मर्यादा बची है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 400 साल से ये खेल चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। आदमी अगली जनरेशन के लिए दौलत छोड़ता है, कार बंगला छोड़ता है। हम लोग अकेले बदनसीब लोग हैं जो सिर्फ झगड़े छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी सदी में चंद सालों में इस मसले का हल हो और राम की जो है वो एक महिमा बची रहे। सुप्रीम कोर्ट पे इस पे जल्द निर्णय नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? इसलिए निर्णय नहीं हुआ कि नियत नहीं है, किसी की नियत नहीं, क्योंकि राम दिल का वो है मसला है, लेकिन यहाँ तो इलेक्शन का मसला बना है।
शिवसेना बंबई से चली आ रही है। वो शिवसेना जो कल तक उत्तर भारतीयों को जूता लेके मारती थी, कभी ऑटो वाले मारे जा रहे हैं, कभी ठेले वाले मारे, एक मिनट, आज वो जो है वो हमारे हमदर्द बनकर चले आ रहे हैं राम मंदिर बनाने। कैसे बनाएंगे? हाँ, मैं उत्तर भारतीयों ये हमको केवल 5 नाम बता दें कि किसको, केवल 5 नाम बता दें कि किसको, किस उत्तर भारतीय को शिवसेना ने मारा। हाँ, वहां वे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, दाऊद इब्राहिम को शिवसेना ने खदेड़ दिया भारत के बाद। यदि इस पर इनको पीड़ा है तो इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं। हमारे ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जहां तक दक्षिण भारत के लोगों, उत्तर भारत के लोगों, शिवसेना मराठा आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स को खेलती है, इससे इस पे कोई दो राय नहीं है। और फिर चलकर आए मंदिर की ही बात तो कर रहे हैं। ढहाने के लिए शिवसेना का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने कहा, जब इस देश के सभी स्वनाम धन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हाय हाय बाबरी ढांचा टूट गए, आज काला दिन है, और तब आप जैसे ही वरिष्ठ पत्रकार ने श्रीमान बाला साहब ठाकरे से पूछा था कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद ढाई है, उन्होंने कहा मुझे अपने शिव सैनिकों पर गर्व है, उन्होंने कलंकित ढांचा ढाया। संतोष दुबे जी, छोटे भाई मेरे, बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि शिवसेना का मिजाज क्या है? संजय रावत जी एक जिम्मेदार फर्द हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं, कहने 17 मिनट में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। क्या आप उसके मुल्जिम हैं? क्या आप इसी तरह से 17 मिनट में बगैर कानून के, बगैर अदालत के, बगैर सरकार के आप मस्जिद बनाना चाहते हैं? मंदिर बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, और आप सब चीज को किनारे लगा के अपनी बात चाहते हैं। लाठी डंडे हुए उनको और केयरफुल होना चाहिए था, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि लोग गलत बयान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? उनकी पीड़ा है और उनकी ओर से मैं कह रहा हूं, आपने कहा वो मुलजिम नहीं है, मैं मुलजिम हूं, और मुझे इस बात का कतई दुख नहीं। मुझे खुशी है कि मैंने बाबरी मस्जिद को ढाया है, और जरूरत पड़ेगी तो उसी तर्ज पर मंदिर को बनाएंगे भी। उन्होंने जो काम उसका समर्थन करते हैं। एक मिनट, एक सवाल ये बताइए, जब बनाएंगे तो उसके अंदर रोड़ा कौन है? शिवसेना बनाना चाहती है, विश्व हिंदू परिषद बनाना चाहती है, जहां हम लोग खड़े हैं, हम सब लोग चाहते हैं बनाना, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको अदालत मानना नहीं है, आपको सरकार की सुनना नहीं है, संविधान आप मानते नहीं है, तो काहे की दिक्कत? संविधान भी मानते हैं, जरूर न्यायालय भी मानते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, आपने भी कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कही, जो कंसिलिएशन के एफर्ट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कंसिलिएशन के एफर्ट्स फेल क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेंसस नहीं हो पाया इस मुद्दे पे। देखिए, इसमें बहुत लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग हिंदुओं में भी और कुछ लोग मुसलमानों में भी इस मामले को, इस मुद्दे को बहुत लंबी खिंचान में लाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात, ये बात बिल्कुल जो सत्य है। अभी शिवसेना की जो बात आई, मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पर आमंत्रित किया, मैंने आमंत्रित किया, मेरे आमंत्रण पर उन्होंने घोषणा किया और आया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय रावत जी एक बार हमारे पास आए, आने के पूर्व समीक्षा करने के लिए जी, लेकिन उनको कुछ लोग ऐसे दलाल मिल गए जो घुमाते रहे। दलालों के बीच में और दलालों के चंगुल से संजय रावत जी आगे निकले। एक मिनट, हाँ। शिवसेना की मानसिकता भी बनाने की है, बीजेपी की भी मानसिकता बनाने की है, तो कांग्रेस सपा बसपा की बिगाड़ने की नहीं है, उसमें भी हिंदू ही हैं। सभी लोग चाहते हैं बनाना, लेकिन कुछ मुस्लिम पक्ष के भी लोग हैं। जो मुद्दा है, जो पार्टी है, हिंदू मुस्लिम की बात है, तो उसमें कुछ हमारे में भी है, हिंदुओं में, और कुछ मुस्लिम में भी, जो इसको लंबा खींचना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूँ, उनके बरगलाने पर कुछ लोग आ जाते हैं। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि 4.5 साल तक सरकार कुंभकर्ण की तरह सोती रही। 4.5 साल तक शिवसेना कहाँ थी? शिवसेना भी कुंभकर्ण है, फिर शिवसेना भी अभी जा रही है। शिवसेना की ओर से मैं बता दूं आपको, अयोध्या के लोग जानते हैं, साधु संत बैठे, हम लगातार पिछले 4 वर्षों से, उद्धव ठाकरे जी तो अभी आ रहे हैं, उनकी ओर से मैं तो करता रहा। धर्म सभाएं जब आपके पार्टी के नेता ही 4.5 साल बाद खुद आ रहे हैं और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं उसको राजनीति से ही देखा जाएगा। जब हम लोगों को लगा कि अब काम नहीं चलने वाला है, तो आमंत्रित किया गया, महाराज जी के नेतृत्व में न्योता दिया गया और वो आए हैं। अगर वो पहली बार आए हैं तो इसमें लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर आए हैं 6 दिसंबर 92 को लोग आए थे, नहीं आपत्ति किसी को नहीं, आपत्ति तो कुछ राजनीति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले आ रहे हैं। नहीं, राजनीति से जोड़ा जाना उचित भी है, इसलिए कि सांसद भी आए, उचित है, विधायक भी हैं। आप मानते हैं कि राजनीतिक नजरिए से किया जा रहा है? आपकी मैं बात तो पूरी कर लेने दीजिए। जोड़ना उचित है, कौन जोड़ रहा है? जोड़ कौन रहा है? वही जो राजनीति कर रहे हैं।
जो दुकान चला रहे हैं वो राजनीति से जोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी पुण्य कमाने आए, दान दक्षिणा देने आए, दर्शन करने आए, सरयू में प्रणाम करने आए, सरयू आरती करने आए। तो राजनीतिज्ञों का अगर ये लगता है राजनीति है, चलिए तो आपने कम से कम ये माना कि ये उचित है कि राजनीति से जोड़ा जाए। कल तक दोनों साथ साथ रहते थे, आज देखा कि ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। एमपी का इलेक्शन अलग लड़ना है शिवसेना को, तो उसने कहा इससे बेहतर क्या है कि राम की शरण में चले जाओ। हमारे अंदर की बात आप कैसे जान गए भाई? आपको भारतीय जनता पार्टी से न्योता मिल गया क्या? भाई मजे की बात तो यही है कि जब सच बात कहा जाता है तो कभी भारतीय जनता पर भेज देते हैं, कभी आप बाबर के साथ खड़ा कर देते हैं। नहीं, मैं आपको बाबर का वंशज की आदत डालिए। आप मुस्लिमों में सबसे संजीदे मुस्लिमान हैं, शुक्रिया से हैं, शुक्रिया शुक्रिया मुसलमान है, इसको इसलिए आपसे बाबर का कोई 36 का आंकड़ा है तय तौर पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं एक सवाल अनुभव शुक्ला से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू युवा वाहिनी से जो है पूरा राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट है ये उनके हाथों से बाहर जा रहा है? वीएचपी शिवसेना मास मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिख रही, हिंदू युवा वाहिनी भी नहीं दिख रही। ये सिर्फ एक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू जन भावना का मुद्दा है। इसको आप शिव सैनिकों को मत लीजिए, भाजपा में मत लीजिए, ये हिंदुओं का मुद्दा है। और हिंदू पूरे विश्व का, पूरे देश का आज संतों के साथ खड़ा है। ये लड़ाई संतों ने शुरू की थी, तब भाजपा नहीं थी, तब शिवसेना नहीं थी। ये लड़ाई संतों ने शुरू की तो संतों के साथ फिर हिंदू समाज खड़ा है। लेकिन बीजेपी का रोल तो सभी जानते हैं कि बीजेपी इस पूरे मूवमेंट से इतनी क्लोजली जुड़ा हुआ है और हिंदू युवानी भी जुड़ा हुआ है। स्पष्ट कहूं तो बीजेपी वही थी। बीजेपी कहती है कि राम मंदिर के मुद्दे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमारी आस्था का विषय, लेकिन हर मैनिफेस्टो में इसका जिक्र जरूर है। तो उसके बाद भी बीजेपी ने मुलायम सिंह की गोलियों के सामने हिंदुओं को खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? जब आपका कोई ताल्लुक नहीं था, आपका कोई लेना देना नहीं था। आखिर बाबरी मस्जिद गिरी, हमको फक्र है कि बाबरी मस्जिद गिरी, शिव सैनिकों ने कहा कि उन्होंने गिराई, इस पर फक्र है, और जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है उसको बनाने की भी, क्योंकि गिराई भी इन्होंने ही है। बिल्कुल ये बात इनकी समझ में आ रही। इन्होंने जो कहा है सच का है। छोटे भाई को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर 19 तक 18 के चुनाव से पहले ऑर्डिनेंस नहीं लाए तो 19 को वो काम होगा जो 6 दिसंबर से पहले हुआ था। I want to quickly take this question across, in fact, to Sudhanshu Trivedi as well as Ashutosh Mishra, but that will come on the other side of this very short break. Don't go anywhere. This debate is just beginning to get heated up. The News Hour special edition today from Ground Zero here in Ayodhya, the mass mobilization that is on. And before we went into the break, I told you we'll take this question right back to Sudhanshu Trivedi and Ashutosh Mishra, who are going to join us live. Sudhanshu Trivedi, let me ask you a very, very simple question, sir. Why is the BJP till now so silent on what it wants to do? The demand has come from the RSS, the demand has come from the VHP. Today, your own coalition partner, the Shiv Sena, has come and said that they will support an ordinance if it is brought in by the centre. Why is the centre so silent so many days after what the Supreme Court's verdict has said? देखिए, यही मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक परिस्थितियों के बदलाव की बात कर रहा हूं। अभी उल्लेख किया गया जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा था, मुझे याद है सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ था। हम अपने घर की छत पे थे। रात को 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा पर स्वर्गीय बाल ठाकरे जी का इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि यदि ये आरोप है तो मुझे इस पे गर्व है। ठीक है, संजय राउत जी आज वही भाषा बोल के गए। और आप मजेदार बात देखिए, आज आशुतोष मिश्रा जी कांग्रेस के पक्ष से होते हुए आज उसी शिवसेना के पक्ष में बोल रहे हैं। और मुझे याद है उस समय बाल ठाकरे जी को अरेस्ट करने के लिए ये लोग बवाल मचा रहे थे कि ये कैसे बोल दिया। इसे कहते हैं बदलाव, और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आ गया। आज आप देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है शिवसेना हमारा वैचारिक मित्र है और उनके मन का जो भाव है वही हमारे मन का भाव है। भाई हम ही मंदिर बनाने का मार्ग नहीं प्रशस्त करेंगे तो क्या वो लोग करेंगे जिन्होंने कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को समर्थन देकर Don't you think that was irresponsible of a member of parliament? सुप्रीम कोर्ट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, संजय राउत ने जो सवाल दिया, जो सवाल पूछा या जो स्टेटमेंट दिया, क्या आप उसको गैर जिम्मेदाराना नहीं मानते हैं? क्योंकि इससे जो है भावनाओं को और उत्तेजित कर रहे हैं वो। आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। यू हैव रेज्ड अ वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, बट माय सबमिशन इज आस्क देम। द चैंपियंस ऑफ सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म आर नॉट स्टेटिंग इवन एन सिंगल वर्ड अगेंस्ट संजय राउत जी। ये है चेंज।
हमारे तो छोड़िए, उनसे पूछिए ना। मिश्रा, do you condemn Sanjay Raut's statement or not? Ashutosh Mishra. और मैं एक और बात याद दिला देना चाहता हूं। Ashutosh Mishra, do you condemn the statement? Please tell us. No, first of all, I would like to remind Mr. Trivedi that the land acquisition in Ayodhya was done by Congress, and at that time the BJP Vice President Mr. S.S. Bhandari had criticized that ordinance. So to say that BJP has always been supporting Ram Mandir, you are 100% factually correct, but that is now almost ancient history. That is about 3 decades ago. What is the Congress's stand today? Where do various parties which speak about secularism stand on this issue today, sir? That's a simple question that is being asked. Do you condemn, first of all, Mr. Raut's statement or not? हाँ, तो माधव देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने 1994 में सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में दे दिया है कि जो न्यायालय का जो आदेश होगा वहां पे राम मंदिर बनेगा। तो इसमें कहीं पे कांग्रेस के मन में कहीं खोट नहीं रही है कभी। और ये भी याद रखिए कि वहां जब मूर्तियां आई थी तब भी कांग्रेस का था, सरकार में थी। जब ताला खुला तब भी कांग्रेस सरकार में थी। जब शिलान्यास हुआ तब भी कांग्रेस सरकार में थी। तो ये गोल गोल बातें करके भटकाने के भटकाना लटकाना, ये भाजपा का हथकंडा है कि वो कैसे अपनी पतली गली से कट ले, बिना ये बताए कि जो है मंदिर कब बनाएंगे और क्या सरकारी, Look at what has happened. You have Sakshi Maharaj who is now coming out and saying that if you dig up Jama Masjid, you will find Hindu idols there. Is this not an inflammatory statement that could potentially, potentially influence other people also? Sakshi Maharaj belongs to which party? Sakshi Maharaj belongs to which party? It's a party which believes in dividing and ruling. But you are still not condemning Sanjay Raut. रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. I will ask that question to Mr. Sudhanshu Trivedi, but do you not condemn the statement by Mr. Raut? मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना हूं. मैं किसी को कंडेम करूं या ना करूं is irrelevant because I am not a politician. So my saying that is irrelevant in this whole context. What I am trying to show, what is your stand? He has raised a very appropriate question. I agree to what Mr. Ashutosh Mishra ji has said. देखिए, ये देखिए इन लोगों का असली चरित्र सामने है। आपने देखा, in the entire discourse, Ashutosh ji has refrained, dodged, diverted, is that appropriate? The direct attack on Shiv Sena. In my opinion, whatever he has said, we do not subscribe to that. We do not subscribe to that idea of breaking any structure. अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने एक बात देखी कि संजय राउत जी के वक्तव्य के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। और मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सीपी जोशी ने बयान दिया, 48 घंटे गुजर गए हैं, बसपा का बयान आया नहीं, भीम आर्मी का बयान आया नहीं, किसी दलित चिंतक ने बोला नहीं, वो महिलाएं जो कहती थी स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, बोला नहीं। मंदिर का मुद्दा हो कास्ट या कम्युनल, एक स्पेसिफिक डिजाइन है। नथिंग कंसर्न, एनीबडी इज नॉट कंसर्न अबाउट कम्युनल हार्मोनी और द सोशल हार्मोनी। Everybody is interested in creating caste conflict and communal conflict. She has simply said, that's why we are saying, ये नहीं बोलेंगे। आखिर में हम ही सबको साथ में लेकर हम ही मंदिर का मार्ग I have to take this question to my other guests as well. But Sudhanshu ji, my last, but Sudhanshu ji, one issue. When the court judgment comes, it will be a Congress government. That's simply what he means. Okay. Let's get beyond this. But Sudhanshu ji, before I have to ask you one very simple question, sir. That if the centre is even contemplating an ordinance or a bill on this issue, shouldn't it come out and clarify this rather than letting the atmosphere just continue like this in Ayodhya, people to be mobilized in this particular manner, and perhaps who knows that since this is such a sensitive issue, when the situation could deteriorate, sir. मैं एक पंक्ति में जवाब देना चाहूंगा। रामचरितमानस में कहा गया है, जो इच्छा करिहो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो आपकी डिजायर होगी भगवान की कृपा से पूरी होगी। हमारी डिजायर भव्य मंदिर है। और एक और बात कहना चाहता हूं,
रामायण की एक चौपाई है, उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके कहना चाहता हूं कि राम मंदिर वहीं बनी है, ये राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जितना भी डिस्कशन करना है कर लीजिए, मंदिर वहीं है, मंदिर का भव्य स्वरूप वहीं बनेगा और बनने का मार्ग हम ही प्रशस्त करेंगे, आश्वस्त रहिए। Okay. Ashutosh Mishra and Sudhanshu Trivedi continue to be with us, but I want to take this question across. Yes. Okay. I want to take that question across to Santosh Dwivedi. Santosh Dwivedi, देखिए कल हमने देखा कैसे आपके सांसद रावत जी ने एक बयान दिया, उसके बाद देखिए किस तरह के बयान आ रहे हैं। आप जो साक्षी महाराज वो आके कह रही है जामा मस्जिद को दिल्ली में खोद दीजिए, वहां पे हिंदू आइडल्स मिलेंगे। तो ये इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है कब तक चलती रहेगी? क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो आया है, अब दूसरा आया है, अब तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। देखिए, साक्षी हमेशा चर्चा में, खर्चा में और पर्चा में विश्वास रखते हैं। वो राम जन्मभूमि के मुद्दे से असल ध्यान भटकाने के लिए सारा बयान कर रहे हैं। शुरुआत तो रावत जी ने करी थी। नहीं, रावत जी ने राम जन्मभूमि पर बात कही है और वो जामा मस्जिद पहुंच गए, कल वो कुतुब मीनार खोदवाने लगेंगे, परसों टाटसा मस्जिद तोड़वाने लगेंगे। हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर का है और निर्माण का है। जरा साक्षी जी से पूछिएगा आप कि वो भी आके एक टेंट में रह ले, और सभी भारत के सभी सांसदों से प्रश्न है आपका क्या कि क्या वो एक दिन किसी टेंट में रह शुरू हो गई सकते है? क्योंकि जो यहाँ से शुरू हुई है, अब देश भर में इस तरह की हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की। एक है निर्मोही अखाड़ा, दूसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो अदालत में भी है और शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है। ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सिर्फ शोर मचाने वाली पार्टीज हैं जो सिर्फ एक प्रोवोक कर रही है। और नतीजा ये है कि अब इस बार राम मंदिर तो बनेगा, उसको किसी को शिकायत नहीं है, जरूर बनना चाहिए। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा, हिंदुस्तान में संविधान बाकी रहेगा, हिंदुस्तान में अदालत की गरिमा रहेगी, या बिल्कुल जैसे बाबर रहा निरंकुश वैसे यहाँ के शासक हो जाएंगे? राम मंदिर बनने से क्या अनुभव जी, कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट्स में है। यदि आप कानून व्यवस्था, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, यदि सब लोगों की अपनी अपनी आस्था हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार है, जो जिस चीज में आस्था हो, भगवान राम में हो, कृष्ण में, जिसमें भी आस्था हो, जिसमें भी आस्था रखते हो वो उसमें बिलीव कर सकते हैं। लेकिन इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना आपको। ये रिस्पेक्ट मैं कहता कश्मीरी पंडित जब निकाले गए थे तब कहना चाहिए था। 84 में दंगे हुए, सिख रोडों पे जला दिए गए थे, तब कहना चाहिए था। अब हो रहा है, गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड में इनको कहना चाहिए था। राम जन्मभूमि के मामले में क्यों, जबकि वहां मंदिर था तो मंदिर रहेगा। लेकिन वहां पे केस भी तो चल रहा है, वहां पे खुदाई हुई, 92 से पहले ना, और क्या सबूत चाहिए? और क्या सबूत चाहिए इनको? 92 से पहले ये मामला कोर्ट में भी तो चल रहा था सर। देखिए, 92 की पहले की बात नहीं है, 400 सालों से, 450 सालों से संत लड़ाई लड़ रहे हैं। अवैधनाथ जी बड़े महाराज जी हम लोगों के पूरे जीवन उन्होंने त्याग किया। दादा गुरु जी हमारे दिग्विजय नाथ जी, उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया। आखिर किसने संघर्ष किया? हमारे जो आराध्य है उनका मंदिर तो अयोध्या में बन के ही रहेगा, कोई चाहे चाहे ना चाहे। राजनीतिक पार्टी जो नहीं चाहेगी 73 से उठा के शून्य पे खड़ा कर देंगे उसको। माधव जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इससे लग गया कि ये विषय आस्था का नहीं है। जहाँ आस्था होती है वहाँ त्याग होता है, कुर्बानी। ये सत्ता के विषय है। जब बाबर जब बाबर सत्ता में था तो उसने एक मस्जिद बना दी। कल्याण सिंह सत्ता में आए, उन्होंने मस्जिद गिरा दिया। इस वक्त सारी सत्ता जो है उन लोगों के हाथ में है, तो चाहे वो कल मंदिर बना दें, चाहे परसों सबको मार डालें। जैसे वो कह रहे हैं जामा मस्जिद गिरा देंगे, परसों कह रहे हैं कुछ गिरा देंगे, सबको गिरा दिया। संतोष दुबे जी, हाथ में सत्ता है इस वक्त। संतोष दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक आपने सवाल उठाया, अब आप इसके बाद ताजमहल पे भी सवाल उठाएंगे, आप आगरा का नाम चेंज करना ही चाहते हैं, जामा मस्जिद का नाम चेंज करना चाहते हैं। पहले ही कह दिया कि विषय सिर्फ अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है भव्य मंदिर निर्माण का है। ये तो साक्षी जी हमेशा उठ पटांग बोलते रहते हैं, उनका मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। वो आओ बाओ बोलते रहते हैं। विषय सिर्फ जहां रामलला टेंट में रह रहे हैं, एक सांसद को आप 24 घंटे किसी टेंट में रखा दीजिए, दूसरे दिन हार्ट अटैक हो जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी। और 500 सांसदों ने, भारत के 500 सांसदों ने अभी तक रामलला के लिए, और जिन्होंने 283 और 18 जिनको ये जिम्मेदारी निभानी थी, 18 तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन 283 मौन बैठे हैं। उनको भी बोलना चाहिए, ऑर्डिनेंस आना चाहिए। शरण जी,
आपसे लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जहां तक ये पूरा मुद्दा है इसको लेकर और अध्यादेश लाने में भी कहीं ना कहीं कानूनी कठिनाइयां हैं। इतना आसान रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मामला एक बार पहले भी सरकारें कानून लाई जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा भी दिया है, उसको बिल्कुल इलीगल भी कहा गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून का सभी लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करते आए हैं, सम्मान करते रहेंगे। कानूनी एक्ट का बहुत से संशोधन भी हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि जी का जो मसला है, श्री राम लला का भव्य नव्य मंदिर निर्माण का मामला है, रामलला जी वहाँ विराजमान है, मूर्ति स्थापित नहीं करनी है, दिव्य नव्य जो निर्माण का है जी, इसके लिए कानून को भी चाहिए जनता का समग्र निष्कर्ष लेकर के बिल्कुल जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री नीड टू डिसाइड अबाउट दिस। जनरल शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है इस डिबेट का। जनरल शरण जी, अनुभव शुक्ला जी, संतोष दुबे जी, मंजर मेहदी जी, एज वेल एज आशुतोष मिश्रा एंड सुधांशु त्रिवेदी, I'd like to thank all of you for joining us from on ground here in Ayodhya. It is for the citizens, it is for the people to think about what they really want and how they want to resolve this entire issue, given the fact that this is an extremely sensitive issue of religion as well as one that has acquired political color. Thank you so much for joining us on the News Hour Special Edition this evening.